Hello students, now we are going to discuss the third chapter of Political Science Part 2, Politics of Planned Development. Basically in this chapter we will study the different important points which give us a lot of knowledge. So the concepts of the chapters are political contestations, the early initiatives, key controversies, and major outcomes. With these titles, we will study the many sub-points, and definitely this chapter basically will be knowledgeable for us. The first topic is political contestation. Contestation means मुकाबला. Political राजनीतिक contestation मुकाबला. Each of these questions on indigenous people means मूल निवासी local people and their rights involved contestation which has continued ever since each of the decision had political consequences. मीन जितने भी डिसीजन हैं जो पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं और जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब के सब है जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राजनीति का परिणाम हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक. और मोस्ट ऑफ द इश्यूज, ज़्यादातर जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल जजमेंट के लिए है जो उनको इन्वॉल्व किया जाता है एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशन, और उनके लिए कंसल्टेशन है जो रिक्वायर की जाती है. बेसिकली जो डिस्कशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच होता है. और द पब्लिक अप्रूवल, जो पब्लिक की अप्रूवल है, दैट इज़ ऑल्सो मस्ट इन इट. सो व्हाट इज़ द लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट? लेफ्ट एंड राइट, it means not that the directions of left and right. Here is the means of the two ideologies, the leftist and rightist. Leftist, the basically who believe in the socialism and communalism, those are known as the leftist. Means basically they talked about the welfare of the society, welfare of the workers, welfare of the peasants, right? And what is right? Rights means rightist who believe in the ideology of capitalism, जो capitalism में believe करते हैं. और सारी जो वो है ज़्यादातर जो प्राइवेटाइजेशन में है जो बिलीव करते हैं, गवर्नमेंट को केवल है जो डिफेंस से रिगार्डिंग है जो कार्य वही करनी चाहिए. सो हु बिलीव इन सच टाइप ऑफ थिंग, दोज आर नॉन एज द राइट्स और राइटिस्ट. ओके, नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल. डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स to an industrialist who is planning to set up a steel plant, and to an urban consumer of steel, and to the Adivasi who lives in the region. Means each and everyone is having the different meaning of development. Already you have studied in 9th class the story of Palampur. In that means each and everyone had different goals and different meaning of development. As an example, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है who produced the steel and he set up the steel plant. So he has different meaning of development. And an urban dweller, urban consumer of steel, he also has a different meaning of development. And in the same way, the Adivasis who live in that region where a steel plant is going to set up, and maybe they also have different meaning of development. Okay, and therefore any discussion on development
is bound to generate contradiction, conflicts and debates। जो डिस्कशन है डेवलपमेंट के ऊपर वो काफ़ी हद तक है जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है, और उस पर बहुत सारी हैं जो डिबेट की जा सकती हैं, डिबेट हो सकती हैं। नेक्स्ट इज द प्लानिंग। द आइडिया ऑफ प्लानिंग is a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in 1940s and 1950s all over the world। This is the planning process, idea of planning as a process। planning है क्या? What is the planning? Planning as a process of rebuilding economy earned a good deal। एक जो इकोनॉमी है उसको रीबिल्ड करना, और अर्न द गुड डील ऑफ द पब्लिक सपोर्ट, और पब्लिक की सपोर्ट से है जो एक अच्छी डील करना। दिस इज द प्लानिंग। एंड ए सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर इन 1944। 1944 में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो वो एक साथ आए एंड ड्राफ्टेड ए ज्वाइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ए प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री। और उन्होंने देश के अंदर है जो एक साउंड इकोनॉमी सेटअप करने के लिए एक ज्वाइंट प्रपोजल है जो वो ड्राफ्ट किया, वो बनाया। इट वॉज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान। उस प्लान को, जो प्लान बनाया गया था, क्योंकि बॉम्बे के अंदर मीटिंग हुई थी, वहाँ पर है जो प्लान बनाया गया था, दैट वॉज नॉन एज बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट to take major initiatives in industrial and other economic investment। जो बॉम्बे प्लान है वो चाहता था कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कुछ बड़े स्टेप ले, कुछ बड़ी शुरुआत करे। दस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट was the most obvious choice for the country after independence। और इस प्रकार है जो चाहे वो लेफ्ट से लेकर राइट तक, मीन्स है जो सोशल वेलफेयर से लेकर और जो इकोनॉमी है उसको साउंड करने तक है जो सारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस। जो प्लानिंग है दैट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस। प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी फॉर द कंट्री after independence, especially soon after India became the independent, the planning commission came into being। The prime minister was its chairperson। so after independence है जो प्लानिंग कमीशन है जो वो इंट्रोड्यूस किया गया, और प्लानिंग कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया। बाद में जब 2014 में है जो बीजेपी गवर्नमेंट आती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो योजना आयोग जो है हमारा, जो प्लानिंग कमीशन है उसको है जो चेंज कर दिया गया। नाउ दैट इज़ नॉन एज द नीति आयोग। अब जितने भी है जो प्लानिंग करता है वो नीति आयोग करता है, ना कि प्लानिंग कमीशन। और उसमें भी जो नीति आयोग है उसके भी जो चेयरपर्सन हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में, बस केवल नाम बदला गया है, नेम को चेंज किया गया है। प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग है जो वो किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो ये है जो हमारा कवर हो चुका है। सो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।